आईएएस कितने लोग बनना चाहते हो बस ये बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग क्रिकेट खेले हो? हाउ मेनी ऑफ यू प्ले द क्रिकेट? हाउ मेनी ऑफ यू प्लेड द लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग? रेज योर हैंड यार. वैसे वॉलीबॉल, एनी स्पोर्ट्स इन योर लाइफ. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू पास 10th क्लास? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू पास 12th क्लास? हाउ मेनी ऑफ यू पास ग्रेजुएशन विदाउट बैक? विद बैक? How many of you receive compartments in 10th and 12th class? Raise your hand. Gently raise your hands. ठीक है. How many of you receive certain type of setback in your life? How many of you receive 70 plus marks in your 10th and 12th class? Distinctions in all the subjects. Raise your hand. ठीक है. Is the strategy in every examination was same? How many of you are having friends? Girl, boy, friend. हाँ, friend. Everybody is having the friend. क्या सबका नेचर सेम होता है? बस हर एग्जामिनेशन का नेचर अलग होता है. यू पीपल आर हैविंग दिस कंफ्यूजन इन योर माइंड. यू पीपल आर 10th पास, यू पीपल आर 12th पास, इवन यू आर ग्रेजुएशन पास. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दैट पासिंग एंड द यूपीएससी क्वालिफिकेशन. हर एग्जाम को निकालने का एक तरीका है, उससे पहले उसको समझना जरूरी है. पीपल आर कमिंग, दे रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. वेरी गुड. What exactly are the common question when you are searching for UPSC preparation? We passed 12th class, we passed graduation, suddenly we decided that we want to become an IAS officers. Our first hand of information is coming from internet. Everybody is searching how qualify an IAS within one attempt. Some people are searching best coaching, some people are searching books, some people are searching फलाना ठिकाना अगड़म सगड़म. हर चीज़ हम सर्च करते हैं, हर चीज़ का आंसर गूगल पर है. Even if you are searching that I am having this problem in my some organ, what is the solution? उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा. If you are having this problem, मेरे को दर्द हो रहा है, साथ में भूत है, कोई भूत तो नहीं होगा, उसका भी आंसर मिलेगा. If you are having this question कि मेरे को यहाँ पर ऐसा हो रहा है, रात को आके मुझे कोई दबाता है बिस्तर के ऊपर, मुझे क्या करना चाहिए, उसका आंसर भी आपको गूगल पर मिलेगा. But how far it is good for you? How many of you are playing some musical instruments? Raise your hand. ठीक है. Which musical instrument you are playing? हाँ, तबला. You learned it from? You learned it from? किससे सीखा है? सर से सीखा है? YouTube पे सीखा है? सर से सीखा है? ठीक है. टीचर से जाके सीखा है. और किसको आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना? क्या बजाते हो? गिटार. किससे सीखा है? YouTube से सीखा है? ठीक है. और कौन बजाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है. कहने का मतलब है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग सम पेन, यू वांट द सर्जरी, यू नीड डॉक्टर, यू डो नॉट नीड यूट्यूब. इन द सेम मैनर, इफ यू वांट सम लॉयर, you cannot take the reference of YouTube. In the same manner, if you want to get teaching, you cannot refer the YouTube for always. Maybe YouTube and other type of things can help you in some regard. Maybe online classes can help you in some regard. But for the accurate knowledge, you at least need the guidance and supervision of someone who is having the experience, who is having that type of skills which can train you in a minimum possible time and you can beat the examination. तो कोई भी स्ट्रेटेजी, यहाँ पर यूपीएससी की बात नहीं हो रही है. एनी फील्ड मीन्स एनी फील्ड, फ्रॉम गिटार टू म्यूजिक टू गेम्स टू स्टडीज, एनीथिंग वांट. द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर वन, फॉर व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर. हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यूपीएससी. व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, यूपीएससी क्या डिमांड करती है, ये हमें पता होना चाहिए. This demand fulfilled by what? That means what to read. What to read. This is another important point. Then after this, if we are reading, we are how much capable to retain? We all are good in reading. We all are good in reading, but we are very poor in retention. Whatever we are reading, only 10% is remaining in our mind. We are not in a condition to remember even 60%, 70%. This is a major hurdle. One time when we are learning something, we are that much capable now, 18 plus, that we understood everything. And we are feeling now it is in our mind, but after 2 weeks, only 10% of that information in the mind which are from our childhood days. आप सबके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर चीजें, अभी मैं सबको बोल रहा हूँ 5 बर्तन के नाम ढूंढ, दिमाग में सर्च करो. पहले 3 नाम एकदम आएंगे, उसके बाद टाइम लगना शुरू हो जाएगा. जैसे ही बोलूंगा 10 बर्तन के नाम रिकॉल करो, सब लोग दिमाग में 10 बर्तनों के नाम रिकॉल करो. 10 यूटेंसिल्स ऑफ द किचन, प्लीज रिमेंबर इन योर माइंड. फर्स्ट, आई एम डूइंग सम साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस टुडे, प्लीज सपोर्ट मी. 3-4 नाम जल्दी जल्दी आएंगे. फ्राइंग पैन, चमचा, तवा, बेलन. इसके बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा. ये लर्निंग होता है.
जो भी चीज हमें बचपन से याद है, गंगा, गंगा जैसी क्लास में कोई पढ़ाएगा आप कहोगे वाओ हमें भी पता है गंगा, लेकिन गंगा के आगे जैसी रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद सब लॉ, उसका सब टू सब लॉ जैसी आएंगे आप उसके बाद भूलना शुरू कर जाओगे। स्टार्टिंग का नाम सबको याद रहेगा गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, क्योंकि बचपन से हमें गंगा का नाम पता है और यही चीज हमें ओवर कॉन्फिडेंस देती है, यस हमें गंगा पता है। जैसे एग्जाम के अंदर हम मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन देखते हैं किसके अंदर पूछा गया गवर्नेंस व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुझे मैं जुडिशरी में देख लूंगा, दैट इज कोर्ट में देख लूंगा, कोर्ट सबको पता है। लेकिन जब आता है व्हाट इज द इश्यू ऑफ द जुडिशरी, हमें एक दो सबको पता है कि भाई जुडिशरी में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके बाद क्या व्हाट, यूपीएससी में नंबर उसके बाद ही मिलने शुरू होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स व्हाट कॉमन पीपल आर थिंकिंग, उसके बियॉन्ड जो 2 पॉइंट लिखेगा और सोचेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इफ एवरीबडी इज स्कोरिंग 10 मार्क्स, हमें 11 नंबर स्कोर करना है। इट इज नॉट अबाउट 90% मार्क्स लाइक योर ग्रेजुएशंस, इट इज अबाउट इफ द मैक्सिमम पीपल आर स्कोरिंग 10 मार्क्स वी कैन स्कोर 11 मार्क्स, इफ अदर पीपल आर स्कोरिंग 11 मार्क्स वी कैन स्कोर 12 मार्क्स। तो इस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है यूपीएससी, जिसको आप लोग बोलते हैं इट इज टफेस्ट एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जामिनेशन। आप कहोगे पागल हो गए आदमी, बिल्कुल पागल हुई यार, मैं पिछले कई सालों से 450-500 रिजल्ट निकाल चुका हूं अपने बलबूते, अपने बच्चों के मेहनत के बलबूते, और उसके बाद से मैं लगातार सर्च कर रहा हूं दैट आई नीड दैट टाइप ऑफ डिसाइपल्स जिनको मैं ट्रेन करूं। मुझे नहीं पता मार्केट में क्या होता है, आई एम अ वन मैन आर्मी एंड वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स, और मैंने अपने बलबूते बहुत लोगों को उनके जीवन में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। And that people respect me a lot, and they are whenever they are in Delhi, they are coming and meet me, and they are just saying one thing, sir, still our parents are giving the wishes कि आज हम आपकी वजह से यहाँ से यहाँ पहुँच गए। जब टीचर्स डे के दिन वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरा अपने आप वैल्यू मिल जाता है मुझे, जो पैसों से बहुत बड़ा होता है, that still my students are remembering me. तो I am in a search of some few students who really want to work hard. As per the dimension of the UPSC, they should not have the fearful about the past, the future as well as others. And they are knowing what is सही और what is गलत, that means what is right and what is wrong. तो यूपीएससी को समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी क्या समझाना चाहती है? यूपीएससी कहना चाहती है आई वांट सिंप्लिसिटी, आई वांट नॉलेज, डीप नॉलेज, आई वांट नॉट फेकिंग इंडिविजुअल्स जो फेक करना ना जानते हो, आई वांट सम सीरियस स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, I want those people who are guided by consistency, I want those people who are having analytical skills and their own thoughts. मुझे ये सब लोग चाहिए। कहने के लिए 3 स्टेजेस है, पीटी मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट। यू पीपल आर कन्वर्टेड दिस स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ऑफ बुक्स। आप लोगों को लगता है कि एग्जाम बुक्स से बना हुआ है, नहीं, ये गलत सोच है आपकी। बुक्स 30% रोल अदा करती हैं, हम सबको पता है। आप सब लोग मेरे साथ बोल सकते हो, अगर मैं आपको बोलूंगा एनवायरमेंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, सबको पता है, मुझे एक बुक पढ़नी चाहिए। नाम लेना यहाँ पर वाजिब नहीं है, वी शुड नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। मैं जैसे बोलूंगा पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, सबसे मुंह से निकले सर लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। मैं जैसे बोलूंगा इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, सबके मुंह से निकले सर ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, सबको सब कुछ पता है, तब भी हम पीटी क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं? व्हाई एवरी ईयर एवरीबडी इज नोइंग एवरीथिंग, इवन देन वी पीपल आर नॉट इन अ कंडीशन टू क्वालिफाई, क्योंकि हमने अपनी दिमाग को लाइब्रेरी की तरह टॉपिक सब टॉपिक में डिवाइड नहीं किया है। Still we are not understanding the concepts. Still we are guiding by mugging up information. Our information are for ultra short term, not for the long term. और हम आज भी बुक्स के डिपेंडेड हैं. We are not making our mind independent. Before 1 or 2 weeks, Nandini came to Delhi and she that somehow met me. मेरे साथ 5 लोगों ने ट्रेवल किया उनसे मिलने के लिए. And everybody is having one complaint कि मैम हम लोग एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं. Then she said only one thing, I had only 5 hours. And within the 5 hours, I always try. India is a country of जुगाड़, वो उसने अपने मुंह से बोला, India is a country of जुगाड़। तो मुझे जॉब करना होता था, उसके बाद I only have that is a 5 hours, और मुझे इस 5 घंटे को अच्छे से यूज करना था। तो आई जस्ट कंसंट्रेट इन सर क्लासेस, क्योंकि सर सब चीजें कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन लेवल यहाँ से यहाँ होता था। एंड आई जस्ट लिसन हिज वर्ड इन अ वेरी गुड मैनर कि सर कैसे लिंक कर रहे हैं, एंड आई जस्ट मेक द थिंग्स अंडरस्टैंडेबल दैट आई कैन रिकॉल। देन शी टोल्ड वन एग्जाम्पल कि अभी हमारी ट्रेनिंग के अंदर हमें थर्मल पावर प्लांट लेके जाया गया इन लेह लद्दाख रीजन, एंड मैं जैसे ही वहां पर गई मुझे सर की एक बात से रिकॉल हो गया, कौन सा रॉक सिस्टम है, कौन सा मिनरल्स मिलता है, कौन सी सॉइल है, कौन सा वेजिटेशन है, एंड एवरीथिंग आई एम कोरिलेटिंग विद ईच अदर। गांधी जी ने यही कंसेप्ट दिया, यूपीएससी भी यही चाहती है। गांधी जी ने बोला कि इफ दिस इज अ चरखा, चरखा कैन टीच एनीबॉडी, नंबर 1 विच वुड इज यूटिलाइजिंग इन चरखा, ज्योग्राफी। The cotton is of which staple size and where we are getting the cotton, economics and geography. Cotton is sellable in which quantity, bales, in bales how many kilogram are there, 180 kilogram. This particular type of charkha is having the radius of how much,
How much is the diameter? By this we can learn the geometry and mathematics. That means through one thing we can learn how many things. It is a basic question. For example, अगर आज हम कुछ पढ़ते हैं तो आप हर चीज को यूपीएससी के साथ लिंक कर देते हो, ये गलत है। आप चीजों को सीखने के लिए सीखो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आज चाइना आया, तो हम सबने न्यूज़ पढ़ा, बहुत अच्छे से न्यूज़ पढ़ा, इंडिया चाइना मोदी एंड दैट इज अ चाइना एंड व्हाट दैट इज आर डिफिकल्टीज, व्हाट पॉजिटिव्स, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स। दिस इज नॉट द मेथड एट ऑल। पहले चाइना को जानो, दैट हाउ चाइना फॉर्म्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री को इंटीग्रेट करो। अब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को अपनाता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं यूपीएससी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, लेकिन इस पॉइंट को कवर करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 7-8 मंथ्स। 8 महीने बाद यू आर आल्सो हैविंग द सर्कल एंड यू आर कोरिलेटिंग सो मेनी थिंग्स। जैसे मैं बताता हूँ, इफ आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज इन माई क्लास, तो आई एम अ टीचर हु इज टीचिंग ऑल जीएस, तो सबसे पहले मैं इसको लिंक करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री से। दैट सन यत-सेन was the person who initiated the revolution in China. China was ruled by multiple colonial power under the open door policy. China was guided by conservative kings, their exploitation, slavery, and that's why colonial power came. USA was also there, Japan was also there, Britain was also there, and everybody exploited China in their own manner. Then Japan became one of the major imperialistic power. अब यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया, like India, Pakistan, China and Japan are also the enemy. इसके बाद हम बोलेंगे that China was guided by liberation, and then liberation resulting into first Sun Yat-sen, but his regime was not successful, and then Mao Zedong came. Mao Zedong ने क्या किया, लोगों का दिल जीता, वो चलता गया, लैंड लूटता गया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता गया, और वो किसका फेवरेट बन गया, लोगों का। एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाज नोन एज कम्युनिज्म। कम्यून, कम्यून मतलब नॉट अ रूल ऑफ वन पर्सन, रूल ऑफ एवरी सिटीजन। कम्यून, कम्यून का मतलब यही होता है जो ओशो ने भी वर्ड यूज किया, कम्यून, जहां कोई किसी को ना जाने, कौन किसका बच्चा है कोई कोई ना जान पाए, किसकी प्रॉपर्टी है कोई ना जान पाए, एंड एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन। दैट इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कम्यून। चाइना जब डेवलप हुआ तो वहां पर रूल आया कम्युनिस्ट रिजीम का, बहुत पुअर था। चाइना वाज वेरी पुअर नेशन, वेरी वेरी पुअर नेशन, इवन पुअरर देन इंडिया टिल 1970. 1970 they somehow adopted the economic policy. Under the economic policy they are providing land reforms, economic reforms, overall that is the labor reforms, and then one child policy. After this they are providing export oriented economy. After export oriented economy they somehow guided by superpower diplomacy. Superpower diplomacy में वो 3 चीजों पे काम कर रहे थे, पहला डिफेंस, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा डिप्लोमेसी। दैट मीन्स वर्ल्ड कंट्री कैन अप्रिशिएट देयर रूल। इसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट चाइना इज गाइडेड बाय सेकंड राउंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जब उसने अपने आप को एग्रेसिव बनाया। चाइना क्लेम एवरीवेयर नाउ, चाइना से साउथ चाइना सी इज माइन, ईस्ट चाइना sea is mine, Antarctica is mine, even Strait of Malacca is mine. This aggressive policy resulting into dispute. This aggressive policy was against USA, and now this policy was the domination within the Indo-Pacific zone. जहाँ चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया है। ये मेरा पहला पार्ट हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ इस टॉपिक को लिंक करना। अब इसके बाद आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि USA on the one side was against India, but now recently they are in favor of India because of economy, because of politics, because of diplomacy, and because of USA interest in Indo-Pacific region. The same USA recently initiated the issue of Uyghur Muslim, and they want to make this Muslim issue of China globalized, which generate the pressure over China via India. China even do not want that India should dominate him. That's why before 1 week China says Kashmir was the internal issue of India. But before 2 days the same China says Kashmir can be solved bilaterally between India and Pakistan. ये हमने आउटर कवरेज दिया कि चाइना इंडिया के साथ किन किन पहलुओं पर रिलेशनशिप मेंटेन करता है। पहला, इंडिया रिलेशनशिप विद यूएसए। सेकेंड, इंडियाज पोजीशन इन इंडियन ओशन। थर्ड, इंडियाज डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। फोर्थ, इंडियाज ओन डिस्प्यूट विद चाइना इन कंटेक्स्ट ऑफ अक्साई चीन, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। एंड फिफ्थ, China never want that he should have one competitor within the nearby region of Indo-Pacific in the form of India. अब ये सब किताबों में नहीं लिखा हुआ है। इतना बेस बताने के बाद we can read the present part that India-China dispute are very high, and when India-China dispute are very high, formal agreements are not possible. That's why Narendra Modi initiated the informal summit started from Wuhan, and now it is coming at Mahabalipuram. इतना करने के बाद हमें इस न्यूज में सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैपिंग। हम सबसे पहले चाइना की मैपिंग करेंगे कि चाइना कितनी कंट्री से बॉर्डर करता है। 3 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, फर्स्ट इज म्यांमार, सेकंड इज वियतनाम, थर्ड इज लाओस।
इंडिया से बॉर्डर करता है। इंडिया के बाद 3 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया से बॉर्डर करता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज नहीं बढ़ रही है, पता चल रहा है आपको पढ़ना कैसे चाहिए। इतनी स्पीड में आप लिख ही नहीं सकते, आपके बस की नहीं है लिखना। तो सुन लो चुपचाप से कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे यूपीएससी आपकी नॉलेज को चेक करता है कि बंदा कितनी नॉलेज रखता है, और इस नॉलेज को आपको अटेन करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है, मैं फिर से बोल दूं, ये पॉसिबल है। अगर मैं पहले दिन गिटार बजाने जाऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग्स भी हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन आपका टीचर आपसे बोलेगा बेटा डू प्रैक्टिस। पहले हम स्ट्रिंग सीखेंगे, फिर टेप बांध के सारे गामा सीखेंगे, कहाँ के कोड से सा आता है, फिर गा आता है, फिर रा आता है, मा आता है, पा आता है, धा आता है, नी आता है, सा आता है, हाँ या ना। उसके बाद वो उसके ऊपर आपको रिदम बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद गाना बजेगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और आप इंप्रेस करोगे लोगों को गिटार बजा के, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना। तो ऐसी पढ़ाई है। पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर A फॉर अमेरिका सीखते हैं, फिर सीखते हैं अमेरिका इज इन नॉर्थ अमेरिका, फिर सीखते हैं अमेरिका इज अ सुपर पावर, फिर सीखते हैं अमेरिका इज गाइडेड बाय अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। इसके लिए पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? अरे सुन रहे हो मेरी बात? फिर चाइना को इतना जानने के बाद उसके बारे में जानो वहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है। उसके नॉर्थ में यूरेनियम मिलता है, आयरन मिलता है, अनशान, फूशान, फुक्सिन, कौन कौन से उसकी मेजर रिवर हैं, दैट इज चांगजियांग एज वेल एज दैट इज, पता है 2 रिवर कौन सी हैं चाइना की? एक तो चांगजियांग है और दूसरी है जी येलो रिवर। बेटा चांगजियांग को ही बोलते हैं येलो रिवर, तो ठीक है। यांगसी, चांगजियांग, बहुत सारी रिवर हैं, छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ अभी, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया की मैपिंग आपको पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए कौन कौन से कॉरिडोर इंडिया और चाइना को मैच करते हैं। फिर ये पता होना चाहिए इंडिया की कितनी स्टेट्स चाइना को बॉर्डर करती हैं। और सबसे आखिर में पता होना चाहिए कि चाइना के कौन कौन से इशूज इस समय इंटरनलाइज हैं, जिसमें आपके 2 मेजर इशू चल रहे हैं। वन इज ईस्ट चाइना सी, शेनकाकू आइलैंड विद जापान, एंड साउथ चाइना सी, दैट इज 2 आइलैंड्स, पार्टली एंड पार्सल आइलैंड। ये एक मेथड था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सर्कल से पूरा होगा कि जब हम इंडिया चाइना पढ़ें तो हमें ज्योग्राफी की नॉलेज होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए, डिप्लोमेसी की नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल समिट्स की नॉलेज होना चाहिए, दोनों कंट्री कितनी समिट्स में पार्टनर हैं एक साथ, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, रिक एज वेल एज SCO। इस तरह हमें बताना चाहिए दोनों कंट्री कहाँ पर कन्वर्ज करते हैं और कहाँ पर डाइवर्ज करते हैं। कन्वर्ज करने के इलाके हैं क्लाइमेट चेंज, कन्वर्ज करने के इलाके हैं इकोनॉमी, कन्वर्ज करने के इलाके हैं एंटी रेशलिज्म, एंटी दैट इज कॉलोनाइजेशन। डाइवर्जेंस के इलाके हैं पाकिस्तान इशू, डाइवर्जेंस का इलाका है न्यूक्लियर इशू, डाइवर्जेंस का इलाका है बॉर्डर इशू, डाइवर्जेंस का इलाका है USA सपोर्ट, डाइवर्जेंस का इलाका है इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग चाइना इन द साउथ चाइना सी। और अल्टीमेटली इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, कि पूरे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को अपना के अपने आप को आगे बढ़ाए, दैट इज इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। अब इसके बाद अगर यूपीएससी कुछ पूछता है, माय स्टूडेंट्स आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी टू राइट एनी आंसर, ये आपका इंटीग्रेंट हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेंट्स। हमें भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछेगा, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि वो कुछ भी पूछेगा इंडिया चाइना में से, वो इसके बाहर नहीं पूछेगा। दिस इज अ मैथड टू रीड द न्यूज़पेपर, दिस इज अ मैथड टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन।